Hello students, welcome to class number 5 of Ancient Indian History. In the last class we had finished with our foreign literary sources. So this will be our last class of this topic 1, which is historiography of ancient India. So our first question is, when exactly did historiography in ancient India emerge, right? So it basically emerged during the colonial times. हमारी ancient Indian history की जो historiography है, it was first started during the colonial times, which is 18th century onwards. And why did the colonial people started? Why did the British start the historiography? It was only because they wanted to understand India for better governance and exploit the resources. Okay, so this is exactly why they wanted to write the historiography of the ancient Indian life, as well as the medieval and the modern. So all sorts of historiography was eventually started during colonial times. So इसमें हमारा first चीज़ आता है, we have schools. First is Orientalist school and the second one is Utilitarian. ठीक है, तो सबसे पहले तो यही दो schools हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. The first one being Orientalist. Orientalist historiography started during the 18th and 19th century. अब इसमें आपके scholars कौन कौन से थे? We had William Jones, H. Colebrook, Cunningham, James Prinsep. ठीक है. Now, why did these people write the historiography? Like, what was their aim? The aim was that they wanted to learn about the Indian society and religion and law to govern India better. ठीक है, they believed that ancient Indian society was advanced. So these were the ones, the Orientalists were the ones who believed that ancient Indian society was advanced, but it had undergone degradation and decay. So our ancient traditions had gone degraded and decayed. ठीक है, so it was the rule of the British which was necessary to kickstart the early stage of progress, which basically means कि they believed कि हमारी ancient Indian society was actually very good. ठीक है, but over time it had undergone degradation and decay. So as a result of this, it was necessary for the British to rule. अगर ब्रिटिश रूल करेगा तो ब्रिटिश हमारा किक स्टार्ट कर सकता है अर्ली स्टेज ऑफ प्रोग्रेस, जो कि हमें एंशियंट टाइम्स में मिलता था. ठीक है, सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ द ब्रिटिश. they wanted to talk about the ancient Indian society in better ways, so they believed that it was an advanced society but it had undergone degradation, and therefore it was important for the British to rule and kickstart the early progress which happened during the ancient times. So here I have written small notes for you. So Orientalist historiography होती क्या है? Again, they were the European scholars, ठीक है, called the Orientalists and Indologists. They did many worked under the British rule. ठीक है, they were the ones who came up with Asiatic Society of Bengal and East India Company. Maybe they were given preference, ठीक है, only because they wanted to rule better and exploit the resources better. इनके major contribution क्या है? They collected, translated and edited ancient Indian Sanskrit texts. ठीक है, तो हमारे जो ancient Sanskrit texts थे वो इस टाइम पे बहुत ट्रांसलेट हुए हैं. इवेंचुअली आवर संस्कृत लैंग्वेज डिड बिकम ग्लोबल. ठीक है, सो देयर historiography, the Orientalist historiography did help us in globalizing our Indian culture. ठीक है, they also developed the epigraphy like I told you, the study of inscriptions, numismatics, study of coins, archaeology, art and architecture studies. They took a deep study of these and they helped them grow. They also helped in decipherment of Ashokan Brahmi script and Kharoshti script. ठीक है, then they helped in discovery of prehistoric tools, and eventually it led to archaeological survey of India in 1871. So हमारी Orientalist historiography में to some extent, yes, it helped us to have a better understanding of epigraphy, numismatics, archaeology, art and architecture. Also helped in collection, translation of our Sanskrit texts, and this helped Sanskrit become a global Indian language. Like everyone was interested in Sanskrit, in translating and in editing Sanskrit texts. So they basically did help in all these things. अब इसी का लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म क्या है?
इससे पहले फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट द यूटिलिटेरियंस डिड. ठीक है, तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो हमारा होता है ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो कि हमें हेल्प करते थे इन आर they wanted to study the Indian society. They believed that ancient society was good, and therefore over time it had degraded and decayed, and therefore the British rule was necessary, so they could kickstart the early stage of progress. And for this they believed कि अगर हमें एंशंट सोसाइटी अगर हमें स्टडी करनी भी है तो उसके लिए वी हैव टू डेवलप एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, आर्कियोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. एंड देयरफॉर दे अंडरटुक डिसाइफरमेंट ऑफ अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट, एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक टूल्स, एंड इवेंचुअली लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1871. ठीक है. हाँ, इसके बाद अपना आता है यूटिलिटेरियंस. Now utilitarians were like Lord Macaulay and James Mill. ठीक है, they basically wrote historiography according to the emerging needs of the British economy. They believed कि first we don't have to focus on ancient India. ठीक है, we don't have to focus on ancient India. We have to focus on our British economy. ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिश इकोनॉमी में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था. सो व्हेन यूटिलिटेरियंस वर इन्फ्लुएंसिंग योर हिस्टोरियोग्राफी एट दैट टाइम इन ब्रिटिश, देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गोइंग. दे डिनाइड द आइडिया ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. दे फेल्ट कि इंडिया में कोई सिविलाइजेशन ही नहीं थी. सो बोथ एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन सोसाइटी वॉज डिस्क्राइब्ड एज बैकवर्ड, बार्बरिक एंड इरेशनल. दे फेल्ट कि एनीथिंग दैट इंडिया डिड वॉज इरेशनल. ठीक है, इट वॉज नॉट गुड. यहाँ पे इनका एम क्या था? टू when they wanted to actually show British economy in a very good limelight, so what they did was they wanted to basically convert India into a supplier of raw materials and a market. So what was India first? India was basically a supplier of finished products earlier. ठीक है, पहले ये क्या करता था? इंडिया तो हमारा सप्लायर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता था, लेकिन दीज यूटिलिटेरियंस वांटेड टू शो इंडिया इन अ बैड लाइट. सो दे वांटेड टू शो इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ मार्केट. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे बिलीव दैट इंडियंस हैड टू बी वेस्टर्नाइज्ड. ठीक है, अब वेस्टर्नाइज्ड होना चाहते थे, तभी आपके वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी वो लोग लेकर आते हैं. ठीक है, eventually a lot of Indians were also against these social religious reform movements, even though we have some nationalists who took part in the social religious reform movements. ठीक है, so I told you already, they wanted to fulfill their British economy की needs, which was based on industrial revolution, and therefore they wanted India to become a supplier of raw materials, and they wanted India to become a market for finished products, for British finished products. ठीक है, सो बेसिकली यूज एंड थ्रो सॉर्ट ऑफ थिंग था इनका कि इंडिया से हम लोग रॉ मटेरियल्स मंगाएंगे, अपनी सामान को फिर इंडियन मार्केट में बेचेंगे. दे ऑल्सो केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म. सो यूटिलिटेरियंस वर द वंस हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म. What is Oriental despotism? It just means that all Eastern societies were changeless societies. They felt कि कोई भी Eastern society है हमारी, it is changeless. ठीक है, अब उनके लिए चेंजलेस क्या है कि देयर वाज नो साइंस, देयर वाज ओनली सुपरस्टिशन. रूलिंग क्लास एक होती थी, हमारा किंग होता था हु रूल्ड ओवर ऑल दीज कॉमन पीपल बाय फोर्स. ठीक है, सो दे केम अप विद दिस हिस्टोरियोग्राफी कि हाँ, इंडिया में तो कोई साइंस नहीं है, सिर्फ सुपरस्टिशंस हैं. एंड द रूलिंग क्लास लाइक द किंग, ही वॉज द वन हु वॉज कंट्रोलिंग द कॉमन पीपल बाय फोर्स. सो दिस इज द आइडिया विच दे told in Britain. So here they also came up with the concept of golden age versus the dark age, where they said कि golden age तो वही है जो कि foreign rule है, dark age वो है जो हमारा ancient हो गया, medieval हो गया. anything which is not foreign was considered as dark age. ठीक है, and anything which was foreign rule was considered as golden age. So this was done because they wanted to legitimize their rule. ठीक है, they wanted कि हमारा British वाला phase is the golden age, and therefore our rule has to be expanded. So this is what in short is our Oriental historiography and utilitarians. अब इसकी limitations और criticisms हैं. Firstly, they relied heavily on the Brahminical Sanskrit text, जैसे कि हमने
ओरिएंटल, इसमें मैंने मिक्स करके लिखा है दोनों का, ठीक है, सो यू कैन यूज इट एज अ जनरल आंसर बिकॉज आई हैव मेंशन्ड ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड यूटिलिटेरियंस इन द सेम पार्ट ऑफ लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म. सो दे रिलाइड हेविली ऑन द ब्राह्मणिकल संस्कृत टेक्स्ट, लाइक आई सेड हियर कि यहाँ पे उनने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणिकल संस्कृत टेक्स्ट पे फोकस किया है. They did criticize Indian society from the Western viewpoint, when you have to realize कि हर चीज़ Western viewpoint से नहीं देखी जाती है, and they made Indian society, they presented Indian society as a static despotic society. ठीक है, it was a confused race, they had confusion in religion, and their ethnicity was also not a very confused state of mind. There was also overemphasis of फॉरेन इन्वेजन. ओवर एम्फिसिस ऑफ फॉरेन इन्वेजन हमारा यूटिलिटेरियंस ने किया था कि गोल्डन एज फॉरेन रूल जो भी होगा दैट इज़ कंसिडर्ड गुड, एंड एनीथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम दीज फॉरेन रूल इज़ कंसिडर्ड बैड. देन दे ऑल्सो, अब यहाँ पे हमारा जो जेम्स मिल है यूटिलिटेरियन, ही वॉज द वन हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. Eventually, this Hindu period, Muslim period, and British period led to communal interpretations. Alright, so this brings us an end to the Oriental historiography and the utilitarians. अब इनको debate करने के लिए we came up with the nationalist historiography. When did they come? They came around late 19th century to early 20th century. ठीक है, अब इसमें आपके एग्जाम्पल्स देख लो. यू हैव A.S. आलतेकर, R.C. Majumdar, M.G. Ranade. All these were nationalists, and they basically emerged. It was considered as an offshoot of the 19th century Renaissance. तो हमारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उसी के वजह से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आर रिलीजन नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड. ठीक है, आर रिलीजन नीड्स टू बी reformed, and as a result we can actually reform the society, because our society is based on religion. And in order to actually make our society more modern, we need to reform our religion, is what was their basic idea. So yes, background mein it emerged during the Indian freedom struggle. Indian scholars responded to colonial interpretations, and they wanted to reconstruct a connected narrative of Indian history. ठीक है, like I said here, it was an offshoot of 19th century Indian Renaissance, जैसे कि social religious reform movements थे, and they felt that there was a need to reform Indian religion. Only then we can reform our society. ठीक है, अब इसमें आपके की फीचर्स हैं कि देयर वाज एम्फेसिस ऑन इंडिजिनस रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. अब हमने उन चीज़ों पे फोकस किया जो कि इंडिजिनस रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन थी. हमने गोल्डन एजेस पे फोकस किया. हमारा जैसे गुप्ता एज होता है, बहुत अच्छा गोल्डन एज माना जाता है. ठीक है, हमने वैदिक एज के बारे में बात करी, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट हाउ आर लिटरेचर वॉज वेरी गुड ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स, एंड हाउ इट इमर्ज्ड एंड केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग ओवर टाइम. आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारा कैसे इंक्रीज हुआ है. सो दे बेसिकली सर्च फॉर ऑल दीज गोल्डन एजेस एंड द गुड पॉइंट्स. एंड येस, this also led to contribution to the political history. And over here we have inclusion of South India in mainstream narrative. A lot of them talked about South India. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये A.S. आलतेकर, R.C. Majumdar, M.G. Ranade, they basically challenged Oriental despotism. They felt that India was democratic, और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ चोलाज एंड गनाज ऑफ महाजनपद्स. सो दीज वर आर डेमोक्रेसी के फीचर्स. वी हैव डेमोक्रेटिक फीचर्स लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ चोलाज एंड द गनाज ऑफ महाजनपद्स. सो येस, when we are talking about the Cholas, obviously we are including South Indian history also into our mainstream narrative. And it also highlighted the non-monarchical systems like the republics, कि हमारे यहाँ पे republics भी होती थी. ठीक है, and they countered the idea that India was always despotic. Like I said here, कि they believed कि India was not despotic, it was democratic. जिसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि we have examples of Ganas of Mahajanpads and local self-government of the Cholas. अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी? वेरी सिंपल लिमिटेशंस. इट स्टिल रिटेन्ड द हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियडाइजेशन. ठीक है, दे समटाइम्स ग्लोरीफाइड एंशिएंट हिंदू पास्ट. अब उनने एंशिएंट हिंदू पास्ट को इतना ग्लोरीफाई कर दिया दैट समटाइम्स दे एंडेड अप पोर्ट्रेइंग इस्लाम एज डिक्लाइन.
or tragedy. So this led to communalism later. Okay, so they focused too much on ancient Hindu past and eventually ended up portraying the advent of Islam or coming of Islam as a decline or tragedy. ठीक है, and obviously eventually this would lead to your communalism. Later यहाँ पे तो आप देख सकते हो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी में वी हैड टॉक्स ऑफ आर political history. ठीक है, they focused more on the political history, and as now when we have Marxist historiography which came from 1950 onwards, a Marxist historiography will obviously work on Marx के ideas पे. ठीक है, इसमें हमारे पहले स्कॉलर्स कौन से हैं? डी कोशाम्बी, आर एस शर्मा, बी एन एस यादव, डी एन झा, सतीश चंद्र एंड इरफान हबीब. ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्कॉलर्स. अब इसका बैकग्राउंड क्या है? वही, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट थ्योरीज एंड फोकस वाज ऑन द focus was on the material conditions and the class structure. अब बेसिकली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है क्या? मार्क्स ने अपनी स्टडी क्या दी थी? मार्क्स ने अपनी स्टडी बेस की थी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पे एंड हिस्टोरिकल डायलेक्टिक्स पे. ठीक है, मार्क्स आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक चेंज, कि हमारी वर्ल्ड में कोई भी चेंज होता है इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक्स. जब तक हमारी इकोनॉमिक्स चेंज नहीं होगी तब तक हम अपनी सोसाइटी में या अपने वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं ला सकते. सो ही आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक चेंज और क्लास स्ट्रगल. अब क्लास स्ट्रगल इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इकोनॉमी. ठीक है, सो ही वॉज द वन हु सेड कि वी बेसिकली स्टडी कल्चर, सोशल एंड पोलिटिकल चेंजेस. ठीक है, एंड बिहाइंड दीज चेंजेस, these cultural, social and political changes, जो भी ये changes हो रहे हैं, their driving force is economics. So economics is the one which is the foundation. ठीक है, it is the foundation of all these changes taking place. तो जब तक हमारी economics नहीं होगी तब तक हमारा culture, social, political change नहीं होगा, is what Marx was saying. ठीक है, economics became the foundation or the substructure over which superstructure of historical changes erected. हमारे superstructure क्या हो गए? ये हो गए culture, social and political changes is our superstructure, and हमारा substructure क्या है? economics. तो economics हमारा base है, उसके ऊपर political, social और cultural changes take place. ठीक है, then historical materialism, I told you. historical dialectics क्या होता है? historical dialectics is based on causes and effect, कि अगर हमारी इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल चेंज हो गया, सो दिस चेंज इन इन्वायरमेंट में कॉज चेंज इन पॉलिटी. क्योंकि हमारी पॉलिटी में क्या होगा? अगर अच्छा इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, वी माइट हैव मोर रिसोर्सेज और लेस रिसोर्सेज. डिपेंड उस पर करता है कि मोर और लेस रिसोर्सेज होंगे. अब मोर और लेस रिसोर्सेज होंगे तो हमारी पॉलिटी भी उस पर चेंज होगी. ठीक है, सिक्के कम होंगे, हमारे जो कॉइन्स होंगे या तो वो नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे. अगर नीचे जाते हैं तो हमारा रूरलाइजेशन बढ़ जाता है. ठीक है, अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ जाता है. तो ये वाले कॉन्सेप्ट में ही सेड कि एवरीथिंग हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है इट कैन इवेंचुअली कॉज चेंजेस इन आर पॉलिटी और हाउ वी यूज़ द रिसोर्सेज. अब इसका एक एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर. जैसे कि हमारा 750 to 1200 CE में इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द अर्ली मिडीवल एज. सो वी कैन एक्चुअली से कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वॉज द वन विच एक्चुअली केम अप विद दिस अर्ली मिडीवल एज फेज which is 750 to 1200. अब this period was actually characterized by the land grants. अब ये land grants होते थे which led to feudalism which was characterized by lower trade एंड मोर वॉरफेयर. मतलब फ्यूडलिज्म है आपके विलेज में तो ऑब्वियसली आपका ट्रेड कम होगा, और अगर ट्रेड कम है, पैसे तो आप कमा नहीं रहे हो, तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? या तो आप वॉरफेयर के थ्रू कमाओगे या बूटी जो कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू कमाओगे. तो ऑब्वियसली फ्यूडलिज्म वॉज कैरेक्टराइज बाय लोअर ट्रेड एंड मोर वॉरफेयर. अब अगर आपकी ट्रेड भी लोअर है तो इवेंचुअली दैट इज़ लीडिंग टू लेस कॉइन्स या फिर एंडिंग ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे कॉइन्स कम मिलेंगे. अगर कॉइन्स नहीं होंगे तो आपका अर्बनाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, इट विल इवेंचुअली लीड टू डी अर्बनाइजेशन. अगर डी अर्बनाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा? आपका रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीज़ बढ़ेगा. मतलब आर इंडियन सिटीज़ विल एक्चुअली बिकम मोर
रूरल इन नेचर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज. सो दिस इंटायर कॉन्सेप्ट वॉज स्टडीड अंडर द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देख लो, दे ऑब्वियसली शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम पॉलिटिकल नैरेटिव टू सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री. लाइक आई टोल्ड यू, अपना यहाँ पे हमारा नेशनलिस्ट ने बहुत फोकस किया था अपना पॉलिटिकल नैरेटिव पे. ठीक है. बट आर Marxist historians, they shifted our focus from political narrative to social and economic history. ठीक है. They focused on the agrarian relations, class struggle, production systems. Then they also studied the non-elite groups. They brought attention to the peasants, laboring classes and marginalizing groups. So these were the major contribution of the Marxist historians. अब इसकी limitations क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि they actually ignored the history of northeast people. ठीक है. Secondly, they treated religion and culture as secondary to economy. They focused so much on economy that they did not believe in religion and culture, कि how religion and culture also shaped our society. ठीक है. They used western historical models. मार्क्स को एकदम मैकेनिकली यूज़ करके अपने इंडियन उसमें डाल दिया है सोसाइटी को स्टडी करने में. टेक्स्ट सेंट्रिक होता है डिस्पाइट इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजी. दे हैड लेस फोकस, initially they had less focus on caste and gender, but eventually हमारा यही है कि they ignored all these things and focused too much on economy. ठीक है. इसके बाद हमारा एक आता है revisionist scholars. So after Marxists we have revisionist scholars. They focused on everything which was not focused on before. इसमें हमारे एग्जाम्पल हो गए रंजीत गुहा, पार्था चैटर्जी, मुजफ्फर आलम, अथर अली, एस सुब्रमण्यम. ठीक है. दे वर द वंस हु शेड लाइट्स ऑन निगलेक्टेड एरियाज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. उसको हम जैसे सबॉल्टन स्टडी भी कहते हैं या फेमिनिस्ट स्टडी भी कहते हैं. अब सबॉल्टन में बेसिकली आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आ जाते हैं. ठीक है. ऑल दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वर अ पार्ट ऑफ द सबॉल्टन स्टडी, जिसमें आप मार्जिनलाइज्ड लोगों को स्टडी करते हो जो कि कभी भी हमारी किसी भी सोसाइटी में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है. तो सबॉल्टन अपना वो हो गया. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यू ऑलरेडी नो कि हम वुमेन पर्सपेक्टिव से हिस्टोरियोग्राफी को थोड़ा देखते हैं. अब इसमें हमारे ये भी थे कि वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ बी.डी. चट्टोपाध्याय चैलेंज्ड इंडियन फ्यूडलिज्म through the model of integrative politics. So when we will move forward, I will explain what integrative politics is. This will eventually come in early medieval period. अभी तो हम अपना ancient India कर रहे हैं. ठीक है. But it will come in early medieval period. So there we will study integrative politics also. And then we have example of how R. Chakrabarti, Ranbir Chakrabarti, who challenged Indian feudalism. ठीक है. He challenged Indian feudalism by pointing out that demonetization of Indian economy didn't take place to such an extent that it would reduce feudalism. कि हाँ हमारे देश में demonetization हुई थी. ठीक है. बट इतनी भी लार्ज नहीं थी कि वो पूरा का पूरा feudalism ही हटा दे. ठीक है. तो ये किसने दिया था हमें थ्योरी? आर एस शर्मा की demonetization वाली hypothesis थी, उसको challenge किया था. He made Ranbir Chakrabarti made आर एस शर्मा rethink his entire hypothesis. So this leads to an end to the revisionist scholars, and here we finish our historiography of ancient history. Another part I would like to discuss here is of historiography of early Indians. अच्छा, अब ये वाला जो part है, this is basically question कि did Indians even have a sense of history? इसके ऊपर एक debate है जो कि बहुत simple सी debate है. ठीक है. I have written some pointers. You can just learn these pointers and write it in your paper. So the question is कि did ancient Indians even have a sense of history? Obviously अपना इसमें सबसे पहले आता है colonial view, जो कि पहला होता है. तो colonial view ने यही बोला कि they argued that Indian society तो बहुत static थी. ठीक है. It was so static, and अब static थी मतलब कोई change, मतलब they were like कि changes ही नहीं होते. तो so they were like कि changeless society थी, static थी, dynamic कुछ नहीं था उसमें. Moreover, they believe that Indians followed only cyclical concept of time. I told you cyclical कौन सा होता है, उसमें आपका त्रेता, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये सब आते हैं. ठीक है. So they followed a cyclical concept of time. Linear concept of time था ही नहीं. ठीक है. This is what they believed in, कि Indians did not have linear concept of time. And also they believed that there was no systematic historical writing. ठीक है. अब इसमें अपने इंपॉर्टेंट नेम्स क्या है? वी एस स्मिथ हो गया, एच विल्सन हो गए, अल बरूनी ऑल्सो सेड कि इंडियंस लैक्ड हिस्टोरिकल सेंस. ठीक है.
आर्ग्यूमेंट्स इनने क्या दिए थे, वही कि भाई इनके यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। दे बिलीव्ड कि वर्क्स ऑफ ट्रू हिस्ट्री आपके जैसे कि हीरोडोटस एंड लिवी ने लिखे, या चाइनीज़ वर्क्स होते थे उन्होंने लिखे, या अरब्स एंड पर्शियंस आए थे, बिकॉज दे फॉलोड अ लीनियर टाइम, ठीक है। लीनियर टाइम मतलब आगे जाता हुआ, बस साइक्लिकल नहीं जा रहा हमारी तरह, ठीक है। लीनियर बस आगे जाता है और साइक्लिकल हमारा जो युग्स में चलता है। सो दे बिलीव्ड कि Arabs, Persians, Chinese, Herodotus and Livy, they all had better concept of time. They believed कि यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट इन्होंने यही दिया कि भाई कोई डायनेस्टिक क्रॉनिकल्स नहीं थे बिफोर 7th century, टेक्स्ट कंटेन्ड मिथ्स। अब अपने इंडियन सोसाइटी में दे वर लाइक कि जो आपके इंडियन टेक्स्ट हैं दे वर कंटेनिंग मिथ्स, ठीक है। समटाइम्स पीपल कन्फ्यूज्ड मिथ्स विद हिस्ट्री, तो they were like how come this cannot be true history because you have also joined in the myths into it, ठीक है। no chronological historical text like the Greeks and Chinese, no dynastic chronicles also before 7th century AD, and text contain myths and not history। अब इसको हमने रिजेक्ट किया है, और सबसे पहले हमारा हिस्टोरियन है रोमिला थापर जी, ठीक है। सो रोमिला थापर वॉज द वन हु एक्चुअली शी केम अप विद द बेस्ट आइडिया of how true history was our Indian history, ठीक है। So modern historians rejected the view. अब रोमिला थापर was the one who said कि see, our sense of history, our Indian sense of history is nothing but consciousness of the past events, कि we were conscious about the past events and these past events were written in an organized framework, ठीक है। उनका ऐसे haphazard way में नहीं था कुछ। हमारी सेंस ऑफ हिस्ट्री, इवन दो हमारा टाइम वॉज डिफरेंट, ठीक है, इवन दो टाइम वॉज डिफरेंट, बट वी हैड एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, वी हैड अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, आर कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ हिस्ट्री वॉज नथिंग बट अ कॉन्शियसनेस ऑफ पास्ट इवेंट्स, वी हैड पास्ट इवेंट्स एंड वी वर कॉन्शियस अबाउट इट, एंड ऑल ऑफ दिस वॉज डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। शी ऑल्सो बिलीव्ड कि हाँ ठीक है, फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री में वेरी अक्रॉस सोसाइटीज़, हिस्ट्री नीड नॉट बी प्योरली क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को हमें सारी चीज़ें सिर्फ क्रोनोलॉजी में ही लिखनी है। वी ऑल्सो हिस्ट्री कैन बी रिटन इन लीनियर साइक्लिकल टाइम ऑल्सो, ठीक है। नाउ की पॉइंट्स इसने क्या क्या दिए थे कि येस, एंशिएंट इंडियंस डिड अंडरस्टैंड टाइम, ठीक है। दे फॉलोड साइक्लिकल टाइम, दे ऑल्सो फॉलोड लीनियर टाइम, एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस प्रिजर्व्ड हिस्टोरिकल मेमोरी। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज रोमिला थापर ने एग्जाम्पल दिया था ऑफ एम्बेडेड हिस्ट्री। अब एम्बेडेड हिस्ट्री क्या होती है? हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग इज डन बट इट इज़ नॉट गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। सो आर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ एम्बेडेड हिस्ट्री। येस, हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे हुई है बट इट इज़ नॉट गिवन प्रायोरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव ज़ीरो सेंस, ठीक है। जस्ट बिकॉज आर हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग इज नॉट गिवन प्रायोरिटी डजेंट मीन वी हैव ज़ीरो सेंस ऑफ हिस्ट्री। देन शी वेंट ऑन टू डिस्क्राइब कि हमारी एविडेंस क्या है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की। जैसे कि शी सेड हियर नो कि सेंस ऑफ हिस्ट्री आपकी कॉन्शियसनेस ऑफ पास्ट इवेंट से आती है, तो हमारी क्या हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस थी। शी गेव एग्जाम्पल्स from later Vedic texts like Dan Stutis, praising of kings' generosity. We have songs in praises of kings. We have heroic praises used in rituals. And then we have narrative hymns. ठीक है, all these were connected with yajnas or sacrifices, which basically shows memory of rulers and events. कि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी इससे हमें मेमोरी पता चलती है, हिस्टोरिकल मेमोरी वी नो किसकी, यहाँ से हमें रूलर्स और इवेंट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। then she talked about Puranas में क्या होता है? obviously they contain the list of the kings, ठीक है। it's structured history into 5 phases which I told you, right? Sarg, Pratisarg, Vamsa, Manvantara, Vamsanucharita, and they all provided dynastic genealogies, ठीक है। तो genealogies थी, dynasty के बारे में था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं थी। एंड हियर वी हैड मेमोरीज ऑफ रूलर्स एंड इवेंट्स, हमें इन सारी चीज़ों से पता चलता है। तो शी गेव एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, देन शी गेव एग्जाम्पल्स ऑफ पुरान्स ऑल्सो। एपिक्स के बारे में भी शी टोल्ड कि येस, हमारे यहाँ पे ब्लेंड ऑफ मिथ एंड मेमोरी दोनों हैं। इसमें हमारा रामायण एंड महाभारत आ गया, विच वॉज कॉल्ड इतिहास। Thus indeed it happened. Yes, we also have myth and we also have memory. So both were also combined. This is another form of history. ठीक है। देन शी टॉक्ड अबाउट बार्डिक ट्रेडिशन।
जिसमें हमारे हीरोइक बैलेड्स गाए जाते थे। ठीक है, ये तमिल बार्ड्स थे हु प्रिजर्व्ड हिस्टोरिकल मेमोरी, कि जितने भी हमारे बार्ड्स ने गाने गाए हैं वो किए हैं। दिस वॉज समहाउ अ सबस्ट्रैटम सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मिथो हिस्टोरिकल अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें हमारा दीपवमसा, महावमसा एंड सीक्रेट बायोग्राफीज ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदूज हैं। तो हमारे पास मिथिकल हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी हैं। देन वी हैव एराज। दीज एराज जो ये हमारे किंग्स आए थे उन्होंने डिवाइड किए थे, साका एरा, विक्रम एरा एंड गुप्ता एरा। ये हमारे, तो इसका मतलब इट इज़ वेरी मच अवेयर, शोज दैट पीपल वर अवेयर ऑफ दिस क्रोनोलॉजिकल टाइम। ठीक है, इवन दो आर क्रोनोलॉजिकल टाइम वॉज रिटन इन अ डिफरेंट वे, दैट डजेंट मीन कि वी वर नॉट अवेयर ऑफ क्रोनोलॉजी। ठीक है, वी वर अवेयर ऑफ क्रोनोलॉजिकल टाइम, इट वॉज जस्ट रिटन इन अ डिफरेंट वे। देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ रॉयल बायोग्राफीज एंड इंस्क्रिप्शंस where we talk about Prayag Prashasti, Harsh Charita, Ram Charita, Vikramu Dev Charita, Hathi Gumfa inscription, Ashokan inscription, Allahabad inscription, Junagadh inscription. Even though they were eulogistic मतलब praise ज़्यादा करते थे किंग्स की, बट इवन देन दे स्टिल प्रिजर्व्ड हिस्ट्री, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट क्या दिया था इनने कि भाई हमारे पास तो कोई क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं है जैसे ग्रीक्स और चाइनीज़ के पास था। बट येस, वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रॉयल बायोग्राफीज एंड इंस्क्रिप्शंस। फिर हमारे पास रॉयल आर्काइव्स भी हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र है विच मैंशंस द आर्काइव्स। ठीक है, जुआंगजैंग हु केम, ही ऑल्सो मैंशनड रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये तो अपना फॉरेनर था ना ये, इसने तो आके हमारी कंट्री में देखा कि येस देयर वाज रिकॉर्ड कीपिंग एंड ही मेंशंस रिकॉर्ड कीपिंग एंड देयर वाज एविडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन। सो शी बेसिकली सेड कि येस, यू कैनॉट से कि इंडियंस डिड नॉट हैव अ हिस्टोरिकल सेंस। इंडियंस डिड हैव अ हिस्टोरिकल सेंस, ओनली आवर सेंस ऑफ हिस्ट्री डिफर्ड फ्रॉम द वेज द वेस्टर्नर्स प्रिजर्व्ड इट। ठीक है, हमारे उसमें ज़्यादा ही था, कुछ ज़्यादा ही था। हमारे लेटर वैदिक टेक्स्ट में कॉम्पोजिशंस थे, पुरान्स में हमारी डायनेस्टिक जिनियोलॉजीज़ हैं, हमारे रॉयल आर्काइव्स हैं, हमारे रॉयल बायोग्राफीज़ एंड इंस्क्रिप्शंस हैं, एराज भी हैं जो कि बताते हैं कि देयर वाज शोज अवेयरनेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल टाइम। मिथिकल हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, येस यहाँ पे मिथ्स भी मैंशनड हैं, बार्डिक ट्रेडिशन भी है जो कि हमें बताते हैं कि हाउ मेमोरी में उन्होंने बार्ड्स ने कैसे प्रिजर्व कर रखी है हिस्ट्री। एंड ऑब्वियसली वी हैव एपिक्स, ठीक है, जिसमें हमारा ब्लेंड ऑफ मिथ एंड मेमोरी दोनों ही होता है। So these are the few cases where she has given examples ki yes, to conclude we can say that Indians did have a sense of history. ठीक है, so in short आप यही लिखोगे कि did have a sense of history. सो हियर कंक्लूजन आप बस पढ़ लो, इसका ऐसे ही है कि देखो, एंशियंट इंडिया हैड हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, इट वाज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम योर मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री। ठीक है, मिथ एंड हिस्ट्री वर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। येस, आर हिस्ट्री वॉज लिंक्ड विद रिलीजन, कोड, कल्चर एंड रिचुअल्स। ठीक है, we can say that history as an academic discipline, it did not exist, but historical consciousness was definitely present. So we cannot say कि historians we cannot say that our ancient Indians had zero sense of history. They had sense of history. ठीक है, उसके लिए ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो गया। So we come to an end of this topic, historiography of early Indians, जिसमें हमने ये डिबेट करी थी, did ancient Indians have history? And this brings us to an end of topic 1, where we talked about our literary sources, our archaeological sources and our foreign sources. ठीक है, we have talked all these things, and I also took you to this debate of did ancient Indians have a sense of history, and we have discussed the historiography of ancient India कि भाई कैसे कैसे अपने कौन से schools थे, orientalist historiography, utilitarians, nationalist historiography, Marxist historians, and eventually finally came the revisionist scholars. तो ये चीज़ें हमने कर लिए हैं. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर स्टोन एज. ठीक है, अब स्टोन एज का जो होगा इट्स अ वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ थिंग. सो फैक्चुअल टॉपिक है तो इसको हम शॉर्ट में ही करेंगे. इट्स नॉट दैट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और समथिंग. I will just give you some facts. We will just go through those facts. इसमें कुछ explanation का भी ऐसा नहीं है. And then we'll go on and go forward with our syllabus, and we'll complete the syllabus on time. Thank you.